کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس دوسرے روز بھی شور شرابے کی نظر، کل تک دونوں ایوانوں کی کارروائی معطل۔ قصبہ پاٹن میں پینے کے پانی کی شدید قلت اور ٹریفک جیمنگ نے عوام کو کر رکھا ہے پریشان، ٹریفک پولیس اور جل شکتی محکمہ خاموش۔ شہر سری نگر میں ٹرانسپورٹ سہولیات کو لے کر ایک بار پھر مسافر نالاں، SRTC بسوں کی شہر میں داخلے پر پابندی، روزانہ 4 لاکھ روپے کا کارپوریشن کو ہو رہا ہے نقصان۔ اور نیل بانہال میں خاص زبان بولنے والے لوگوں نے سرکار پر زبان اور ثقافت کو نظر انداز کرنے کا لگایا الزام۔ اور بھی چند موضوعات ہیں آج کے شہر بین میں، ایک وقفے کے بعد۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے۔ رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ میری HIV رپورٹ پازیٹیو آ گئی ہے اور ڈاکٹر نے مجھے ART سینٹر ریفر کر دیا، سب ختم ہو گیا۔ نہیں، HIV رپورٹ پازیٹیو آنے پر بھی سب ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیمت روپ سے ART یعنی اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، یہ ایک لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے جس کی دوائیاں ART سینٹرز میں مفت ملتی ہیں اور اس سے آپ ایک سوستھ جیون جی سکتے ہیں۔ ART سینٹرز GMC جموں، سکمس سورا اور GMC کٹھوا میں ہیں، اور ہاں ادھم پور، راجوری اور لے میں لنکڈ ART سینٹرز ہیں۔ HIV کی ادھک گپت اور مفت جانکاری کے لیے نیشنل ٹول فری نمبر 1097 پر کال کریں۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی JNK ایڈز کنٹرول سوسائٹی۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن جموں اور کشمیر کی طرف سے ایک ضروری سوچنا۔ اگر آپ 1 جنوری 2025 کو 18 سال کے ہو چکے ہیں مگر ابھی تک پنچایت الیکٹورل رولز میں رجسٹر نہیں ہوئے ہیں، یا پھر آپ کا نام یا آپ سے جڑی کوئی بھی ضروری جانکاری درج نہیں ہے یا اس میں بدلاو کی ضرورت ہے، تو آج ہی اپنے گرام سیوک سے سمپرک کریں اور فارم کلیکٹ کریں۔ آپ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ secjk.nic.in پر جا کر بھی فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپ ڈیٹڈ فارم کے ساتھ اپنے ضروری دستاویز اپنے گرام سیوک کے پاس درج کروائیں۔ نئی انرولمنٹ کے لیے فارم PER-2A، اپنا موجودہ نام ہٹوانے کے لیے فارم PER-2B، کریکشن کے لیے فارم PER-2C اور کسی دوسری پنچایت حلقے ٹرانسپوز کے لیے فارم 2D کا استعمال کریں۔ 16, 17, 23, 24, 30 نومبر اور 1 دسمبر کو سبھی پولنگ بوتھ لوکیشن پر اسپیشل کیمپس لگائے جائیں گے، جس کے مادھیم سے پنچایت رول میں انرولمنٹ کے لیے آپ کی پوری سہایتا کی جائے گی۔ ERO دوارا کسی بھی کلیم یا آبجیکشن کی سنوائی 23 دسمبر کو ایوم انتم پنچایت الیکٹورل رول 2025 6 جنوری 2025 کو پبلش کیا جائے گا۔ ادھک جانکاری کے لیے اسٹیٹ الیکشن کمیشن جموں کشمیر کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی اسٹیٹ الیکشن کمیشن UT آف جموں اینڈ کشمیر۔ شہربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.8 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ہنگامے کی وجہ سے کارروائی آج بھی منعقد نہیں ہو پائی اور دونوں ایوانوں کی کارروائی کل تک ملتوی کی گئی۔ آج صبح لوک سبھا میں اتر پردیش کے سنبھل میں تشدد کے معاملے پر ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کارروائی 2 بار ملتوی کرنا پڑی، جس کے بعد اسپیکر نے ایوان کی کارروائی کل تک ملتوی کی۔ سماجوادی پارٹی کے اراکین اور دیگر اپوزیشن اراکین نے سنبھل میں تشدد کے خلاف نعرے بازی اور احتجاج شروع کر دیا۔ SP کے اراکین شور مچاتے ہوئے ایوان کے بیچ میں آ گئے اور سنبھل کے قاتلوں کو پھانسی پہ لٹکا دو جیسے نعرے لگا دیے۔ اس دوران کانگریس، نیشنل کانگریس پارٹی، شرد پوار اور ترنمول کانگریس کے اراکین نے بھی اپنی اپنی نشستوں پر کھڑا ہو کر SP اراکین کے نعروں کی حمایت کی۔
अपोषण अराकीन के हंगामा राय की वजह से आज लोकसभा में वक्फे सवालात नहीं हो सका। स्पीकर ने अपोषण अराकीन से अपील की कि वो वक्फे सवालात जारी रहने दें और इसके बाद उनके मामले पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अपोषण मंसूबे के तहत ऐवान को चलने नहीं देना चाहती है। इधर राज्यसभा में अपोषण अराकीन ने दिल्ली में अमन अमान की सूरत-ए-हाल, उत्तर प्रदेश के संबल और मणिपुर में तशद्दुद और अडानी की मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के कायम का मुतालबा करते हुए आज जबरदस्त शोरगुल किया और इस वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ी है। अब एक और मौजू। सामिन शुमाली कश्मीर के कुपवारा, सोपोर, बारामूला, ओडी और हंदवारा को जाने वाली शाहराह पर पट्टन कस्बा एक अहम मकाम रखता है। अलबत्ता पट्टन कस्बे में ट्रैफिक जैमिंग की वजह से अक्सर शुमाली कश्मीर के लोगों को श्रीनगर पहुंचने में काफी ताखीर हो जाती है। यही नहीं, पट्टन कस्बे में पीने के पानी की भी शदीद किल्लत रहती है और आबादी को गुनागू मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एमएलए पट्टन रियाज जावेद बेदार आज हमारे स्टूडियो में आए और पट्टन की तामीर तरक्की के बारे में बात की। हमने पट्टन असेंबली हल्के में लोगों को दरपेश मसाइल से उन्हें आगाह किया और उन्हें यकीन दिलाया कि अगले चंद माह में वो पट्टन के लोगों को दरपेश मसाइल को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिजली का जो है, बिजली की जो बिलिंग है, खासकर बिजली की बिलिंग, एक तरह से जो बिजली की फराहमी वो तो था, एक इशू था, लेकिन सबसे ज्यादा था कि बिजली की जो ये एक शेड वाले को भी वही रेट लगाते हैं जो एक 2 रूम शेड में रहता है और एक बड़े मकान वाले को भी। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कहीं 300 रुपए से शुरू होके 1500, 1600, 1700, उस पर कोई जवाब नहीं बनता है। वहां उन तक ये बात पहुंचाएगी, चाहे वो ओडी के लोग हैं, चाहे वो पट्टन के या कहीं बाकी इलाकों के भी। एक मुश्तरका प्रॉब्लम है कि उसको रिव्यू किया जाए। जो आदमी शेड में रहता है 2 रूम्स में, उसका मीटर हिसाब उसी हिसाब से लगना चाहिए, उसका जो बिलिंग हो रही है, और जो दूसरे बार उनको उसी तरीके से किया जाना है। रैशनलाइजेशन लाने की जरूरत है। दूसरा, जो बिजली की फराहमी जो है रूरल एरियाज में काफी कटौती रहती है। तीसरा जो था कि जो तरसीली लाइनें हैं बिजली की पूरे रूरल एरियाज में, वो प्रॉपरली ले डाउन नहीं हुई है। सरकारी ऑर्डर है कि जितने भी पुराने पोल हैं उनको नए पोलों से रिप्लेस किया जाएगा और कंडक्टर जो भी है कैरिंग जो तरसीली लाइनें हैं उनको भी ठीक ठाक किया जाएगा। वो पट्टन टाउन के लिए हॉस्पिटल की बात हुई, वो ड्रिंकिंग वाटर की बात हुई और ट्रैफिक फाइल है। हॉस्पिटल्स के बारे में यही, स्टाफ जो वहां पर है अंडर स्ट्रेंथ है, डॉक्टर्स कम है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, जहां कहीं मशीन लगी है वहां टेक्नीशियन नहीं है, जहां डेंटल सर्जन लगा है वहां उसके लिए वो जो डेंटल चेयर होनी चाहिए थी वो नहीं है। क्रिएशन या वैकेंसीज को फिल करने की जरूरत है। कहीं नई जगहें हैं जहां पर क्रिएशन की जरूरत है, जैसे निहालपोरा है, जैसे ये खुई एरियाज है। इन एरियाज में जो हमने आइडेंटिफाई किए, इन एरियाज में क्रिएशन की, बहरहाल ये सरकार के सामने मसला है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद इस पर काम हो जाएगा और उसका कुछ नतीजा निकलेगा। जहां तक ट्रैफिक कंजेशन की बात है, वो बहुत बड़ा मसला है सब लोगों के, और नॉर्थ कश्मीर के लिए, क्योंकि पट्टन ही एक एंट्री पॉइंट है, वो सबके लिए डिफिकल्टी की बात है। अनकरीब कुछ सोच रहे हैं कि इस सड़क को वापस, जो अंदर वाली सड़क है, जब तक ये बाईपास बन जाएगा वो फिर नेशनल हाईवे हो जाएगी और तब तक इस अंदर वाली सड़क को है, इसको कुछ वापस R&B को दिया जाए। उसके लिए उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई जो है वो की है, ताकि इसमें कुछ स्ट्रेटनिंग, कुछ जहां जहां बॉटल नेक्स है उन पर काम करके थोड़ा सारा उसमें राहत पहुंच जाएगी। मगर वो ज्यादा पर फोकस उनका यही था कि हाईवे जो है बाईपास वो जल्द अज जल्द बनना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम जो लोड है वो वहां से चला जाएगा। उसके साथ ही हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर के मसाइल जो है, पीने के पानी, उस पर भी जो है प्रयासपोरा 2 स्कीम का उन्होंने कहा कि, और वो काफी इलाके को केटरिंग कर रही है, लेकिन हमने निशानदेही की है उन इलाकों की, जैसे मैंने कहा कि आलमबाग जैसे इलाके हैं, चंद्रहोम जैसे इलाके हैं, खुई में साफ पानी की जरूरत है, डिमांड है, और उम्मीद करते हैं कि फॉलो अप एक्शन जो है वो जो हम शायद दिसंबर के महीने में लेंगे या असेंबली के सेशन में उस पर बात होगी तफसीलन, वहां हम उनसे ये बात क्लियर करवाएंगे कि कहां तक, किस हद तक हमारी बातें जो है उनको अमल में लाया गया है, उनका सोल्यूशन निकाला। ये थे एमएलए पट्टन रियाज जावेद बेदार।
शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समिट जम्मू कश्मीर असेंबली ने पीडीपी के मेंबर असेंबली वहीदुर्रहमान परा को नोटिस जारी किए और उन्हें जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। इतलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी ने इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है और नजीर अहमद गुरेजी ने असेंबली के स्पीकर के सामने तहरीर तौर कहा है कि पीडीपी के मेंबर ने उनके खिलाफ तौहीन आमेज जबान का इस्तेमाल किया, जिसकी तहकीकात की जानी चाहिए। गुज़श्ता रोज असेंबली सेक्रेटेरिएट में वहीद परा को नोटिस जारी करके 7 दिन के अंदर अपना जवाब पेश करने को कहा गया है। वाज़ेह है कि 8 नवंबर को असेंबली सेशन के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर वहीदुर्रहमान परा और एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी के दरमियान तलब कलामी हुई थी और एक दूसरे के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए गए थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गिरधारी लाल डोगरा को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि आजानी एक हमजद शख्सियत के तौर याद किए जाएंगे, जिन्होंने माशरे खासतौर गरीब और पसमानदा तबके की फलाह बहबूद के लिए बेपनाह काम किया है। गिरधारी लाल जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान थे, जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से था। वो जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के रुकन भी रहे हैं और उन्होंने 26 साल तक रियासत के वजीर खजाना के तौर अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। इधर उधमपुर के कटरा इलाके में आज भी मजदूरों और दुकानदारों का एहतजाज जारी रहा। आज पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होने की खबरें हैं, जिस दौरान कई अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस ने चंद अफराद को हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह है कि आज पुलिस ने मजदूरों और दुकानदारों के 2 नुमाइंदों को हिरासत में लिया, जो कटरा बेस कैंप में वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाले मुजवजा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। आज पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद पुलिस ने 8 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया जाता है कि एहतजाज के दौरान 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि मुजाहिरीन ने आज कटरा चौक में ट्रैफिक भी रोका और यात्रियों के आजादाना गुजरने में रुकावटें पैदा की। इसके बाद भूपिंदर सिंह जमवाल उर्फ पन्नू मियां, सोहन चंदर और मकबूल समेत दीगर अफराद के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी और तशद्दुद भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान कटरा में मजदूरों और दुकानदारों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर प्रदेश कांग्रेस ने आज सूबाई कमिश्नर से मुलाकात की और इसके बाद एक डेलीगेशन ने कटरा का दौरा भी किया। बताया जा रहा है कि उन्हें पुलिस ने बन टूल प्लाजा के नजदीक रोक दिया। कांग्रेस ने पुलिस के रवैये की सख्त मजम्मत की है। सामीन, सरकार ने अगरचे वादी में मादनियात की गैर कानूनी कानकनी पर रोक लगाने के लिए गुज़श्ता 2-1 साल के दौरान कई संजीदा इकदाम किए हैं। अलबत्ता इस सिलसिले में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस ताल्लुक से मौजूदा हुकूमत कानकनी अमल में बाकायदगी लाने के लिए भी सोच रही है। इधर वादी के मुख्तलिफ जिलों में मिट्टी की गैर कानूनी खुदाई के बायस माहौलियात का शिराजा शिद्दत से मुतासिर हो रहा है और इस सिलसिले में बड़गाम से यूनुस परे का कहना है कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में धड़ल्ले से मिट्टी की खुदाई जारी है और जिन इलाकों से मिट्टी हासिल की जाती है उन्हीं इलाकों के सार्फिन को 1500 से 1800 रुपए फी टिप्पर के हिसाब से फरोख्त की जाती है। मजीद जानकारी यूनुस परे की जबानी। वादी में कुदरती मादनियात और वसाइल की गुज़िश्ता कई सालों से गैर कानूनी तरीके से ज़री अराजी और पहाड़ों से मिट्टी खोदकर फरोख्त की जा रही है और इन कुदरती वसाइल की गैर कानूनी खुदाई और गैर कानूनी नक्ल हमल से माहौलियात पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वही वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले में भी कई बरसों से सरगर्म मिट्टी माफिया वाले जिले की खूबसूरती को खत्म करने में मसरूफ अमल है। तफसीलात के मुताबिक जिले के मकामा, ग्रीनाड नागाम, कुदवेरा चाडुरा, बनगाम मागाम, शमशान खान साहब, सायरा, डडिना, रडबुक, तेकिया फारूक, वतरवनी, पालर और वाहपुरा वगैरह इलाकों में दिन रात के दौरान मशीनों को इस्तेमाल में लाकर गैर कानूनी तौर पर मिट्टी फरोख्त करते हैं। काबिल जिक्र बात है, जिस इलाके में मिट्टी खोद कर उसी इलाके में ये एक टिपर 1200 से 1800 रुपए के हिसाब से फरोख्त करते हैं। लोगों के मुताबिक इंतजामिया की तरफ से गफलत शारी और कोई भी रोक और कोई भी कार्रवाई और रोक न लगाने पर अवामी हल्कों में शक शुबा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ये गैर कानूनी अमल रोकने के लिए मौसर इकदाम अमल में नहीं लाए जा रहे हैं। जबकि शहरबीन को ये भी इतलात मौसूल हुई है कि मजकूरा ठेकेदारान पहले पटवारियों के पास एक साइट दिखाकर अफसरान को चूना लगाकर दूसरे घास चराई से मिट्टी उठाकर काफी महंगे दामों में फरोख्त करते हैं। इधर वाडवन, नाजीगाम, चढ़बुक, राजवन, बटपुरा, शिवपुरा और सुनूर किलीपुरा के लोगों ने शहरबीन को बताया कि देर रात मिट्टी से भरी डंपर से अगरचे इलाके की खूबसूरती खत्म हो रही है, वही आबादी को चलने फिरने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मजीद कहा
के दौरान शब लैंड माफिया वाले बड़ी सरगर्मी के साथ मिट्टी निकालने के अमल में मसरूफ रहते हैं और यहाँ तक कि कई जगहों पर अगरचे महकमा का इजाजतनामा भी होता है, लेकिन इसके बरक्स 15 गाड़ियों के इजाजतनामे के बजाय 40 गाड़ियों को काम पर लगाए जाते हैं, जिसके नतीजे में मज़कूर इलाकों में गाड़ियों का शोर होता है, जिसके नतीजे में आम लोगों की नींद भी हराम हो जाती है। बकौल लोग शिकायत करने पर अगरचे महकमा के अफसरान सिर्फ जाहिरी तौर पर कई गाड़ियों को जब्त भी कर लेते हैं, मगर फिर चंद दिनों में ही ये कारोबार फिर से शुरू हो जाता है और अफसरान की अदम तवज्जो से ऐसे कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उधर भीरवा, चाडोरा और बडगाम तहसील के कई इलाकों से भी इतलात मौसूल हुई है कि लैंड माफिया अपनी गैर कानूनी सरगर्मी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा करते जा रहे हैं और माफिया वालों ने इलाकों में मौजूद मिट्टी निकाल कर बदनुमा दाग लगा दिए हैं और कुदरती नजारों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोगों ने इस सिलसिले में सरकार से मुतालबा किया कि वह ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए जो इस माफिया में मुलविस है, ताकि मज़कूरा इलाकों की खूबसूरती को बचाया जा सके। गौरतलब बात है कि जिला बडगाम में कई बरसों से लगातार सरगर्म मिट्टी माफिया वाले मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी निकालने के हवाले से जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और जिले की रौनक को खत्म करने में माफिया वाले मसरूफ है। ये थे बडगाम से यूनुस परे। अब एक और मौजूद। समीर श्रीनगर शहर में एसआरटीसी बसों के दाखिले पर एक बार फिर पाबंदी आयद की गई है, जिसके नतीजे में सरकारी मुलाजमीन, तलबा और तलबात और मरीजों को जबरदस्त दिक्कतों का सामना है। बताया जाता है कि 4 नवंबर से ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट महकमे ने एसआरटीसी बसों को पंथा चौक और बिमना से शहर के अंदर दाखिल होने पर रुकावट पैदा की है। इस दौरान मालूम हुआ कि उड़ी से श्रीनगर चलने वाली नॉन स्टॉप वेस्टर्न बस स्टैंड की गाड़ी को कुछ दिनों से पानीमपोरा बस अड्डे के बजाय टंगपोरा का रास्ता इख्तियार करने को कहा गया है, जिससे सिविल लाइन्स में आने वाले मुलाजमीन, तलबा तलबात और बीमारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवामी हलकों ने वेस्टर्न बस स्टैंड के जिम्मेदारों से मांग की है कि मुसाफिरों की सहूलियत के लिए बसों को मुकर्ररा मंजिल तक चलने को कहा जाए, जबकि एसआरटीसी इंतजामिया ने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से कॉरपोरेशन को रोजाना की सतह पर तकरीबन 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि एसआरटीसी कॉरपोरेशन ने 2000 करोड़ की लागत से 655 नई बसें और ट्रकें खरीदी हैं, जिनमें 125 बसें इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चल रही हैं। अवामी हलकों ने ट्रांसपोर्ट महकमे और एसआरटीसी महकमे से मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हंगामी तौर इकदाम करने पर जोर दिया है। शेयरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अड़जी येली कमजोर गसान गोड़ अड़िज फुटान पत दब लगान। डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर 4 दिसंबर 2024 पे 15 दिसंबर 2024 ताम BMD कैंपन हुंद इनकाद करान। पन्न अड़जन हिंज जानकारी बापत अनु तशरीफ यमन BMD कैंपन मन ये अड़जन हिंज हालत वुचन यी। खास कर टेस्ट तिमन खतर जरूरी यम सिगरेट, तमोक या बे कह नशासन करान। अमे अलावा तिमन मस्तूरातन हिंद खतर जरूरी यमन पीरियड्स बंद आसन गमत। अमे अलाव पज यह टेस्ट 65 वरी अलाव प्रत वंस हिंदन इंसानन करुन तो खास कर तिमन यमन रीहार, लिवर, किडनी, टाइप 1 डायबिटीज या थायराइड प्रॉब्लम आसे। यह टेस्ट गछ महज 200 रुपयन पे येल जन अख टेस्टस मार्केटस मज 1500 रुपये हेवान छे। यम BMD टेस्ट सपदन 4 तो 9 दिसंबर इकबाल कॉलोनी नटीपोरा श्रीनगरस मज, 5 तो 12 दिसंबर उर्दू बाजार बारामूला, 6 तो 1 दिसंबर मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, 7 तो 14 दिसंबर सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, 8 तो 15 दिसंबर लाल चौक अनंतनाग, 10 दिसंबर कोट रोड शुपियन, 13 दिसंबर खानका फैजपना त्राल। अपॉइंटमेंट बापत करियो यथ नंबरस पे कॉल 9419408011। फोन नंबर बूझो बे एक लटे 9419408011। ये पैगाम जो तहता वातनावन डॉक्टर नसीर ग्रुप ऑफ यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स। शेयरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समी शोपियान से फयाज बानी ने खबर दी कि आज वजीर सेहत, तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद सकीना मसूद इत्तू ने शोपियान का दौरा करके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियान समेत दीगर सरकारी महकमों में कामकाज का जायजा लिया। मोहसबा ने जिला अस्पताल का दौरा करने के बाद बताया कि अस्पताल में नीम तिब्बी अमले की कमी है और इस सिलसिले में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को हिदायत दी गई है कि वो इस मामले को आज खुद देखें। ताहम सकीना
یتو نے بتایا کہ ضلع اسپتال میں جگہ کی کمی ہے اور مریضوں کا بہت زیادہ رش بھی ہے، جبکہ راجوری اور پونچھ اضلاع کے مریض بھی مغل روڈ کے راستے ضلع اسپتال کا ہی رخ کرتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے ضروری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ان کے ہمراہ ایم ایل اے شوپیان ایڈوکیٹ شبیر احمد کلے، ایم ایل اے زینپورہ شوکت حسین گنائی اور سابق ایم ایل اے شوپیان شیخ محمد رفیع بھی تھے۔ بعد میں سرکٹ ہاؤس شوپیان میں سکینہ مسعود اتو نے ورکروں کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی۔ شہربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، خطے چناب کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کا کلچر اور ثقافت بھی منفرد ہے۔ جہاں اس خطے میں کشمیری، ڈوگری، پوگلی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں، وہیں رامبن کے کچھ علاقوں میں کھا زبان بولی جاتی ہے۔ یہ کھاشا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ زبان ہندو مسلم دونوں فرقوں کے لوگ بولتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو پوگلی سے الگ مانتے ہیں۔ خا زبان کھڑی، نیل اور بانہال کے کئی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ خا زبان سے وابستہ لوگوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ اس زبان کو چھٹے شیڈول میں شامل کرایا جائے اور جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی اور دیگر اداروں میں اس زبان کو بھی شناخت دی جائے۔ گزشتہ دنوں شہربین کی ٹیم نے جب بانہال کا دورہ کیا تو وہاں خاص زبان سے وابستہ فنکاروں، شاعروں اور قلمکاروں نے ایک ادبی پروگرام منعقد کیا اور خاص زبان میں منفرد شاعری اور موسیقی سے سارے حاضرین محظوظ ہوئے۔ اگر کھاشا قبیلہ کو آج 21ویں صدی میں بھی ان کو اپنا زبان کا حق نہیں ملے گا تو ہمیں ستیلی ماں کا سلوک دیا گیا ہے، کیونکہ اس علاقے سے رجوری سے بھی ہماری نمائندگی تھی، پونچھ سے بھی تھی، ریاسی سے بھی تھی، بارہ مولہ سے تھی۔ اس خطہ چناب اور ارسٹ وائز پیر پنچال کے لوگ یہی بات اس کوچ چھسم کرتی، اس کو چھسم کھالتی، اسے مکائی مینڈ کوتی، اس گاس لون چھسم، اس گوتر پال چھسم، اس کاٹ سار چھسم، اسو یو کلچر سچو قدیم۔ ہاں یس موکے تو بہر اس چگلی دار کموتے پشتو بہر سیاوے گلے پوش جمال۔ ہاں یس موکے تو بہر روسو چگلی دار کموتے پشتو بہر سیاوے پوش جمال۔ آئی پوش گلے سکم چلو پوش گموتے پشتو بہر کھا ورڈ جو ہے وہ سنسکرت زبان سے لیا گیا، کھاشا سے نکلا ہوا ہے۔ تو ہمارے جموں کشمیر کی پہلی کتاب جو جموں کشمیر کی سیاست یا جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر لکھی گئی ہے اس کا نام ہے نیلمت پران۔ نیلمت پران لکھتا ہے، نیلمتا پنڈت اپنی کتاب میں، یہ 11 پیجز کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے، کہتا ہے یہ جو کھا قوم، جو کھاشا قوم جو ہے ان کا ایک ملک ہے جس کا نام کشمیرہ ہے۔ کھاشاز ان شتریاز کو کہا جاتا ہے، یودھاز کو کہا جاتا ہے، وہ لڑاکو قوم، وہ بہادر قوم جو ہمارے خطے میں پوری ڈومیننٹ رہی، ہماری زبان ایک رہی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا، یہ ہمیشہ اگنور کی گئی۔ اتنی قوم اب آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھا قوم کے کھا لفظ کے نام کے اوپر جو ہے ہماری ذاتیں ہیں۔ کھڑی تحصیل میں کھشال، کھاش قوم، یہ کہاں سے آیا؟ خاک قوم، یہ کہاں سے آیا؟ سوچنے کا مقام۔ عاشق کرتی پلن پان قربان، عاشق کرتی پلن پان قربان، اچن مت راچی خاک پائے محمد، دن عالمن تھدی جائے محمد، عاشقن دلن بھری مائے محمد۔ نیل علاقے میں خاص زبان کو فروغ دینے کے لیے ادبی تقریب۔ سامعین، سینئر صحافی اور روزنامہ ٹریبیون چنڈی گڑھ کے سابق سری نگر بیورو چیف مکھن لال کاک کا انتقال ہو گیا ہے۔ مکھن لال کاک نے اپنی رہائش گاہ وقع گڑگاؤں ہریانہ میں گزشتہ رات آخری سانس لی۔ مکھن لال کاک کے انتقال پر وادی کی مختلف شخصیات اور صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران سے تعزیت کی ہے۔ بارامولہ سے ملی اطلاعات کے مطابق محکمہ لائبریریز میں کام کرنے والے بارامولہ ضلع کے جز وقتی صفائی کرمچاریوں نے شکایت کی ہے کہ 10 سال سے انہیں مشاہرہ ادا نہیں کیا گیا ہے، جس وجہ سے وہ طرح طرح کی مشکلات سے دچار ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے واجبات فوری طور واگزار کرائے جائیں، بصورت دیگر وہ
एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के गावरन के बाजार में कल शाम आग के एक हादसे में कम से कम 8 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। ये आग गावरन मार्केट की एक दुकान में नुमदार हुई, जिसने 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अपनी लपेट में लिया और 7 मजीद दुकानों को नुकसान पहुंचाया। इस हादसे में लाखों रुपये मालियत का सामान तबाह हुआ है। समीन वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे दर्ज होने से सर्दियों का जोर तेज तर हो रहा है। वादी में जिला शोपियान, पहलगाम और गुलमर्ग सरतरीन मकामात दर्ज हुए। पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -4.4, शोपियान में 4.6, गुलमर्ग में 2.6 डिग्री दर्ज हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 29 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर खुश्क रहने का इम्कान है। उनका कहना है कि बाद अज़ां 30 नवंबर की शाम को वादी के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और वादी में यकम और 2 दिसंबर को भी पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी या फिर बारिशें मुतवक्के हैं। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के एहतमाम से आज कॉन्फ्रेंस रूम टैगोर हॉल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब का एहतमाम रहा, जिसमें मरूफ शायर, अदीब और नक्काद सैयद अख्तर हुसैन मंसूर की तनकीदी मज़ामीन पर मबनी किताब सुकन तसाम की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत प्रोफेसर नासिर मिर्जा ने की, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी कल्चरल अकादमी सैयद शकील उर रहमान, साहिब किताब अख्तर हुसैन मंसूर और एडिटर शिराजा कश्मीरी जावेद इकबाल खान भी ऐवान सदारत में शामिल रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास में बोलते हुए मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि बैरूनी रियासतों में कश्मीरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएं और मुल्क में फिरका परस्ती के रुझान का कलाकमा करने के लिए सख्त कानून साजी की जाए। शौकत अहमद मीर ने राजस्थान में कश्मीरी तलबा को मुअत्तल करने और हरियाणा में कश्मीरी शाल फरोख्त करने वालों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाने के वाकयात की मजम्मत की है और कसूरवारों को फौरी तौर की फिरकर्दाद तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। सामीन वादी कश्मीर में आज जलजले के झटके महसूस किए गए, ताहम इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक कश्मीर में दोपहर 1:35 पर जलजला आया और रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.7 थी, जबकि जेर जमीन इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जाती है। जलजले का मरकज श्रीनगर बताया गया है। चुकुरा पुलवामा से मकामी लोगों ने शिकायत की है कि वहां बिजली की अदम दस्तियाबी और आंख मिचोली से आम सारे परेशान है। मकामी लोगों ने शेरबीन को बताया कि वहां बिजली के आने जाने का कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं है और उन्हें रोजाना 2-3 घंटे ही बिजली नसीब हो पाती है, वो भी मिनटों के हिसाब से। चुकुरा पुलवामा के बाशिंदों ने सरकार से मुतालबा किया कि बिजली सप्लाई में माकूलियत लाई जाए। समीन वादी के मारूफ शायर मुश्ताक मुहिद्दीन डार आज दोपहर श्रीनगर में इंतकाल कर गए। उनकी आखिरी रसूमात आरत बड़गाह में अंजाम दी गई है। मरहूम मुश्ताक मुहिद्दीन ने 3 किताबें लिखी हैं। वादी की कई अदबी और सकाफती तंजीमों ने मुश्ताक मुहिद्दीन डार के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए सुगवारान से ताज़ियत की है। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।